Hello and welcome to the second part of human health and disease. We had already discussed about four kind of common type of diseases which are happening in human beings. Today we will be dealing with a very important topic, that is the disease malaria. So continuing with the common diseases, we will now be discussing about the malaria. First of all, what we have to know that malaria is a mosquito-borne disease and it is caused by a sporozoan which comes under the protozoa, that is under the kingdom Protista. And the name of that sporozoan is Plasmodium. Okay, so what is the causative agent of malaria? It is Plasmodium. Now, it is a hemolytic widespread disease. Now, what do you mean by hemolytic? See, hemolytic comes from the word something related to hemoglobin, and lyting means that breaking up or splitting up of that hemoglobin molecule. So actually, it is the splitting up of or a rupturing of the RBC or the red blood cell. Okay, so this plasmodium, the infective phase of the plasmodium, which will be coming to know as the sporozoite. So the sporozoites enter the red blood cell and causes its rupturing. Clear? We will be going through it in further. Now, the vector for which this plasmodium is transferred from an infected person to the normal person, and the vector is the female Anopheles mosquito. So the female Anopheles acts as the vector. Clear? Now, plasmodium, we have to know about this. It is an obligate intracellular parasite. इंट्रासेल्यूलर मतलब ये एंडोजीनस है. क्लियर? ऑब्लिगेट मतलब दैट इज इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ पैरासाइट. हम लोग जो पैरासाइट डिस्कस किए थे इन क्लास 11th, मैंने बताया था कि पैरासाइट हो सकता है फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट. सो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब ही होगा कि दे ऑलवेज एक्ट एज पैरासाइट. ठीक है? और यहां पर पैरासाइट के लिए उसको होस्ट की आवश्यकता होगा. तो प्लाज्मोडियम जैसे आपके इन्फेक्टिव स्टेज जो है, उसको दो अलग अलग होस्ट की आवश्यकता होगा. द फर्स्ट दैट इज द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द मैन, और एक हो जाएगा मॉस्क्विटो. मैन यहां पर इंटरमीडिएट होस्ट का काम करेगा. क्लियर? बट जहां पे इसका इन्फेक्टिव स्टेज या स्पोरोजोइट बनेगा, जिसके वजह से इसको हम लोग स्पोरोजोआंस बोलते हैं, वो स्पोरोजोआंस जो बनेगा वो बनता है एक्चुअली मॉस्क्विटो के अंदर. therefore mosquito is known as the definitive host. Clear? So man is your intermediate host and mosquito is the definitive host. Now there are four species of plasmodium जो जाना जाता है कि यही आपके मलेरिया कॉजिंग होते हैं. First of all is your the most common, that is the Plasmodium vivax. Clear? Then the Plasmodium malariae, the Plasmodium ovale जो जनरली आपके साउथ अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं, and the Plasmodium falciparum which is the most virulent. और ये अगर आपका एनोफिलस मॉस्क्विटो से जाएगा और जिसको मलेरिया होगा, if the infective stage is your Plasmodium falciparum, then it will be causing the most malignant malaria. क्लियर? ये सबसे खतरनाक होता है और जनरली इसमें आपके मतलब 95% केसेस में डेथ एकदम अनिवार्य है. क्लियर? इनएविटेबल होता है. तो therefore it is usually fatal. Now, this is the structure of a single sporozoite, which is the infective stage of the Plasmodium vivax हो या चाहे कोई भी इन चारों में से कोई भी हो. देखिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, डेफिनेट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सीक्रेटरी ऑर्गेनेलीज है, ठीक, एपिकल कैप और माइक्रोट्यूब्यूल्स है. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका मैलिग्नेंट टाइप डिसाइड होता है. जैसे अगर मैं बोलूं मोस्ट कॉमन इज योर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो देयर आर 11 सच माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट. और सबसे ज्यादा जो आपका होता है वो है 15, दैट इज इन प्लाज्मोडियम falciparum, which makes it the most
malignant type. Clear? Next, if we talk about sporozoites, तो ये sporozoites होता क्या है? Now this sporozoites actually obviously नाम से हमें समझ में आ रहा है कि spore like something है. So a motile spore, motile मतलब चल फिर सकता है, movement show कर सकता है. The motile spore like stage जो आपके इस पैरासाइटिक स्पोरोजोअन के लाइफ साइकिल के अंदर होता है, यही स्पोरोजोइड जो है ये एंटर करता है एज द इन्फेक्टिव एजेंट, और ये आपका होस्ट के अंदर एंटर करके डैमेज कॉज करता है. क्लियर? ठीक. सो द इन्फेक्टिव एजेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट इज योर स्पोरोजोइड. क्लियर? अब ये सेल साइकिल के कहां पर होगा, कौन से लाइफ साइकिल के अंदर शो करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम के अंदर. लाइफ साइकिल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें दो तरीके के लाइफ साइकिल पता चलेगा, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल. ठीक है, सो इट हैज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हैविंग बोथ द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेज. अगर एसेक्सुअल फेज की यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये आपके एसेक्सुअल फेज मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्चुअली आपका जो बाइनरी फिशन, सॉरी मल्टीपल फिशन होता है इनके केस में, वो कहां पर होगा, मैन के अंदर. क्लियर? तो मैन जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर होगा एसेक्सुअल फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? और जो सेक्सुअल फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी ऑकरिंग इनसाइड द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. क्लियर है? ठीक. तो सेक्सुअल फेज जहां पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स होंगे वो होता है आपका एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर, और जो आपके एसेक्सुअल फेज है जहां पे आपके स्पोर्स बनेंगे अलग अलग होके, वो होता है इन मैन, विद देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट होस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये साइकिल हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह देखेंगे तो आप पता चलेगा. देखिए, ये आपका है द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन. इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्यों? क्योंकि ये आपके मॉस्किटो जो है ये किसी से ब्लड सक करके आया है, और उस ब्लड के अंदर आपके स्पोरोजोइड्स है, मतलब ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके आया है. ठीक. सो नाउ उसके अंदर से जो स्पोरोजोइड्स है, वो स्पोरोजोइड्स धीरे से जो नॉर्मल इंसान को काटा है उसके ब्लड स्ट्रीम में ये जाता है. क्लियर है? ठीक. ये जो स्पोरोजोइड्स है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड स्टेज है, अब ये धीरे से जाके सबसे पहले इफेक्ट करेगा किसको, द लीवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. क्लियर? सो ये देखिए, दीज आर द हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स मतलब द सेल्स ऑफ द लीवर. तो स्पोरोजोइड्स नाउ अंडरगो साइजोगैमी. तो ये साइजोगोनी क्या है? साइजोगोनी हम लोग बोल सकते हैं द टाइप ऑफ, जिसको हम लोग मल्टीपल फिशन बोल सकते हैं, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द हेपेटोसाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. क्लियर? तो ये साइजोगोनी होगा यहां पे, और कई सारे छोटे छोटे मेरोजोइड्स पैदा होंगे. क्लियर? तो अंदर क्या आया, स्पोरोजोइड्स आया, वो ब्लड स्ट्रीम में होते हुए लीवर के अंदर आया, और लीवर के अंदर जो सेल्स है उस सेल्स के अंदर स्पोरोजोइड्स एंटर करेगा और कई सारे छोटे छोटे मेरोजोइड्स बना देगा. क्लियर? मेरोजोइड्स धीरे से रिलीज होगा जो अंडरलाइंग आपके ब्लड वेसल्स है. तो देखिए, दिस इज द ब्लड वेसल विथ दीज रेड ब्लड सेल्स. तो ये देखिए जो आपके ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, these are the merozoids. So merozoids are released from the hepatocyte and they are entering into the bloodstream from the liver. और अब ये मेरोजोइड धीरे धीरे जो न्यू आरबीसी सेल्स है उनको अफेक्ट करते हुए रह जाएगा. क्लियर? अब जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर आएगा, देखिए फोर्थ स्टेज के अंदर होता है, मेरोजोइड अब धीरे धीरे एक रिंग स्टेज बनाएगा. क्लियर? तो मेरोजोइड्स क्या करेगा, एक रिंग स्टेज या रिंगेट जिसको हम लोग बोलेंगे, आगे देखेंगे. ये पूरा का पूरा मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रॉपर्ली बताया है ऑफ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जो मेरोजोइड है ये सबसे पहले आपका रिंग स्टेज में बनाएगा इनसाइड द रेड ब्लड सेल. क्लियर? फॉर्मिंग अ रिंगेट. ये रिंगेट धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, दिस रिंग साइज विल बी ग्रोइंग. ठीक. और ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके और भी कई सारे मेरोजोइड्स ये फॉर्म करेगा. क्लियर? सो द रिंग स्टेज ग्रोज इनसाइड द आरबीसी एंड डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग मेरोजोइड.
मेरोजोइड्स। क्लियर? ये जो मेरोजोइड्स इसके अंदर बन रहा है, अब ये मेरोजोइड्स रिलीज होगा कब? जब ये रेड ब्लड सेल रप्चर होगा, जब ये टूट जाएंगे, तब इसके अंदर जो आपके डिवीजन होके कई सारे मेरोजोइड्स बना था, वो धीरे धीरे रिलीज होगा। क्लियर? ये जो मेरोजोइड्स आया है, ये कुछ मेरोजोइड्स तो आपके नए रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करेगा और सेम ऐसे रिंगेट फॉर्म बना लेगा, और कुछ इनमें से मेरोजोइड्स जो है वो अब डेवलप होगा इनटू द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट्स। क्लियर है? ठीक, यही आपके मेरोजोइड्स, मतलब मेरोजोइड्स जो आपके आरबीसी को इफेक्ट किया, कुछ तो रिंग साइज बनाया और फिर अगेन आपके मेरोजोइड्स बना लिया। अब जब आपका आरबीसी रप्चर हुआ, जो मेरोजोइड्स निकले उनमें से कुछ अगेन दे विल बी अटैकिंग द अदर आरबीसी सेल्स, और ये सेम साइकिल फॉलो होगा। ठीक, मतलब धीरे 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 आरबीसी सेल्स को रप्चर करने लगेगा। ठीक है, और कुछ जो आपके है वो क्या करेगा, वो गैमेटोसाइट्स बना लेगा, मतलब फॉर्मिंग द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट्स। क्लियर? अब यहां पर इस स्टेज के अंदर एनदर मॉस्क्वीटो जब आप यहां पर बैठेगा उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, तब आपके यही जब वो ब्लड मील सक करेगा, ब्लड को सक करेगा, तब यही गैमेटोसाइट्स अब उस ब्लड से होते हुए इट विल बी एंटरिंग इनटू द मॉस्क्वीटो बॉडी। क्लियर? यहां पर एक छोटा सा चीज बता देता हूं, ये जो इंफेक्शन है प्रोड्यूसिंग ऑफ द मेरोजोइट्स एंड रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी, इसमें कई आपके दिन लग जाते हैं, लगभग 7 दिन से 14 दिन, मतलब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम यहां पर लग जाता है। एक बार जब आपका ये आरबीसी सेल टूट जाता है, तब इसके अंदर से रिलीज होता है, मतलब मेरोजोइट्स तो रिलीज होता ही है, साथ साथ इससे आपका एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम लोग नाम देंगे हेमोजोइन, एंड दैट हेमोजोइन डिस्क्राइब्स द सिम्टम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स नजर आएंगे मलेरिया का, जैसे कि हेडेक हो गया, जैसे कि आपका फीवर हो गया, बहुत ही चिल्स या कंपन जो आपको महसूस होगा, वो सारा का सारा होगा आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी एंड द रिलीजिंग ऑफ द हेमोजोइन। तो ये हेमोजोइन कब रिलीज हुआ? जब आरबीसी सेल आपका रप्चर हुआ। रप्चर होते हुए दो चीज हो रहा है, एक तो मेरोजोइट्स निकल रहा है और आपका रिलीज हो रहा है ऑफ हेमोजोइन। ठीक, अब यहां पर इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई भी मॉस्क्वीटो, मतलब फीमेल एनोफिलस मॉस्क्वीटो अगर सक करता है उसका ब्लड, तो यही आपके गैमेटोसाइट्स अब एंटर करेगा उस मॉस्क्वीटो बाइट से। क्लियर? दिस गैमेटोसाइट्स विल नाउ फॉर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेट, मतलब माइक्रो गैमेट, और आपके जो मैक्रो गैमेट है फीमेल का, वो दोनों अब यूनाइट होगा। क्लियर? ये यूनाइट कहां पर होगा? इन द मॉस्क्वीटोज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर? ठीक है, तो मॉस्क्वीटो का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, यही गैमेटोसाइट्स which will be forming the gamete cells, they will be uniting, that means fertilization कहां पर हुआ? Fertilization of these gametocytes is taking place in the digestive tract of the mosquito, और ये दोनों आपका क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बनेगा जाइगोट। क्लियर है? सो दिस इज द डिप्लॉयड स्टेज। तुरंत ये जो आपके जाइगोट है, ये धीरे धीरे आप क्या बनेगा? स्पोरोजोइड्स बनेगा। क्लियर? और यही स्पोरोजोइड्स होते हुए ये आप धीरे धीरे ब्लड से होते हुए ये हेमोसील, क्योंकि ये तो आपका एक आर्थ्रोपोड है। क्लियर? तो आर्थ्रोपोड के अंदर हेमोसील होता है, तो ये हेमोसील के अंदर से आपका होते हुए ये चला जाएगा स्पोरोजोइड्स इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्क्वीटो। क्लियर? तो देखिए, जो हम लोग अभी पिछले स्लाइड में स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक वैसे स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कहां पर है? इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्क्वीटो। नाउ अगेन व्हेन दिस मॉस्क्वीटो सिट्स इनटू अ नॉर्मल पर्सन, और जब वो ब्लड सक करता है, तब यही स्पोरोजोइड्स अगेन इट विल बी एंटरिंग इनटू अ नॉर्मल पर्सन। क्लियर? तो यहां पर क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ मैन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे आपके स्पोरोजोइड्स बन रहा है, मेरोजोइड्स आपके धीरे धीरे बन रहा है, और मल्टीपल फिशन की तरह अलग अलग, मतलब इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक, एंड देयरफॉर इट इज द इंटरमीडिएट होस्ट। क्लियर? और एक आपके एनोफिलस मॉस्क्वीटो है,
जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट्स इज टेकिंग प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्लियर. फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इनटू द स्पोरोजोइड, द इन्फेक्टिव स्टेज जो है. क्लियर है. तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपका डेफिनेटिव होस्ट. कोई दिक्कत? क्लियर है. इसको पॉज करके आप अच्छी तरह इस जो साइकिल है, ऐसा ही साइकिल आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया हुआ है. ठीक है. तो यहां पर हर एक स्टेज को आप लिख भी सकते हो, या मैं वही चीज डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो वही लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम कहां पे? इनसाइड द ह्यूमन बीइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है ना, ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हुआ वो कब हुआ? जब एक फीमेल मॉस्क्वीटो इनोक्यूलेट कर लिया वो स्पोरोजाइट्स को, किसका? प्लाज्मोडियम, फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड इनसाइड द मॉस्क्वीटो इनटू द ब्लड ऑफ द मैन. क्लियर. नेक्स्ट, यही जो आपके स्पोरोजोइट्स है ये इन्वेड करता है, आक्रमण करता है किसको? द लिवर सेल्स, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं. और यहां पर स्पोर्यूलेशन के मदद से या मल्टीपल फिशन की मदद से, जिसको हम लोग साइजोगोनी बोलते हैं, ये धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करेगा और बनाएगा कई सारे मेरोजोइड्स. तो दिस इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिवर सेल्स. नाउ यही आपके जो स्पोरोजोइड्स है ये अब बन जाएगा मेरोजोइड्स, और ये धीरे धीरे आपके एंटर करेगा इनटू द ब्लड वेसल एंड इनसाइड द आरबीसी. जैसे ही आरबीसी के अंदर आएगा इट विल बी फॉर्मिंग अ स्मॉल रिंग लाइक, जिसको हम लोग सिग्नेट रिंग का नाम देंगे. और लेटर ये एक एमीबॉइड मतलब एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा. इट विल बी ग्रोइंग इन द साइज, और ये धीरे धीरे उस आरबीसी के अंदर जितने भी हेमोग्लोबिन है उस रेसिडुअल हेमोग्लोबिन के वो आपका लेता जाएगा. क्लियर. अब जब पूरा हेमोग्लोबिन ले लिया तब ये आरबीसी रप्चर होगा, और जितने भी मेरोजोइट्स बने थे अंदर वो सारे के सारे along with the हेमोजोइन रिलीज होगा. और यही हेमोजोइन होगा जब हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया प्रकट हो. क्लियर. ठीक. मतलब सिम्टम्स आने का मतलब है दैट द infection or the mosquito with the sporozoites has already beaten the human being at least 7 days earlier. ठीक. ये जो मेरोजोइड्स अब बना ब्लड स्ट्रीम के अंदर, कुछ मैंने जैसे बोला कि वो अगेन आरबीसी को, दूसरे आरबीसी सेल को अफेक्ट करेगा, और कुछ मेरोजोइड्स अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस और बना देगा क्या? गैमेटोसाइट्स. क्लियर. द मेल गैमेटोसाइट which is also known as the microgametocyte and the female or the mega या macro gametocyte develop. क्लियर. तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल. अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है दैट इज द मॉस्क्वीटो, उसके अंदर इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है. तो यही सेम चीज, जैसे ही आपका मॉस्क्वीटो सक करता है ह्यूमन ब्लड को, अब ये ह्यूमन कैसा है? इन्फेक्टेड. तो उस इन्फेक्टेड ह्यूमन ब्लड से जो गैमेटोसाइट्स बना था वो गैमेटोसाइट्स अब धीरे से इस मॉस्क्वीटो के अंदर आ गया, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाके उसके मिड गट रीजन के अंदर पहुंच जाता है. क्लियर. मिड गट इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव ट्रैक, अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. सो यहां पर द मेल गैमेटोसाइट give rise to sperms like microgametes because they are motile, and the female gametosite becomes a macrogamete. Clear. और अब यहां पर ये माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स विल हैपन, और तब जाके आपका एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा जो जिसका आकार एक केंचुए की तरह होगा या थ्रेड लाइक, या जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म एक नाम देते हैं, ookinete. Clear. So the zygote which is formed by the union of the microgamete and the macrogamete, it is also known as the ookinete. Clear. अब ये ookinete जो होगा, ये ookinete पेनिट्रेट करेगा किसको? द वॉल ऑफ द गट. क्लियर. तो ये गट वॉल को पेनिट्रेट करेगा और ये एक एनसिस्ट फॉर्म बना देगा जिसको हम लोग नाम देंगे oocyst. तो जाइगोट फॉर्मिंग अ वोकाइनेट, वोकाइनेट होते हुए, क्योंकि ये केचुए की तरह होता है, तो इसका आपका जो आपका एपिकल पोर्शन है उस एपिकल सेल के मदद से ये पेनिट्रेट करेगा इनटू द गट वॉल, और ये एनसिस्ट हो जाएगा. मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन मतलब कि आउटसाइड एक हार्ड वॉल बना लेगा चारों तरफ, और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं oocyst. क्लियर. ये oocyst अगेन इट विल बी अंडरगोइंग मल्टीपल फिशन, फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ slender
सिकल शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइड्स। क्लियर है? मतलब एक oocyst जो होगा, वो एक oocyst आपका मल्टीपल फिशन करके कम से कम 10,000 ऐसे स्पोरोजोइड बना लेगा। कोई दिक्कत? बाय अंडरगोइंग मल्टीपल फिशन। क्लियर? अब ये जो स्पोरोजोइड्स बने, ये धीरे धीरे रिलीज होगा इनटू द हेमोसील ऑफ द मॉस्क्वीटो, जो आपके माइग्रेट कर जाएगा टू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्क्वीटो। अब ये मॉस्क्वीटो जब कोई नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, तो उसी sporozoids will be released from the salivary glands and will be reaching to the bloodstream of the normal person, or again a new cycle will be forming. Clear? कोई दिक्कत है? So when the mosquito injects a normal human being, these sporozoids will be injected into the blood of the normal man, causing malaria in it again by undergoing the asexual reproduction. कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपका द लाइफ साइकिल इनसाइड द मैन एंड लाइफ साइकिल इनसाइड द एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्वीटो। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? ना सिम्टम्स ऑफ मलेरिया जो है, वो मैंने पहले भी बताया था कि लगभग उसको 7 से 18 दिन लग जाता है इन्फेक्शन के बाद। ठीक? और क्यों? क्योंकि वही आपके स्पोरोजोइड से मेरोजोइड, मेरोजोइड से आपके जो सारा चीजें आपका करेगा सिग्नेट स्टेज, तो उसमें कम से कम 7 से 18 दिन का टाइम लग जाता है। क्लियर? जब तक हेमोजोइन रिलीज नहीं होगा, तब तक कोई भी मलेरियल सिम्टम्स नजर नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि फीवर हो सकता है, ठीक, बुखार होगा, फैटिग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टायर्डनेस, मसल पेन, जॉइंट पेन, ये आपके हो जाएंगे। चिल्स मतलब बहुत ज्यादा कंपन होगा। क्लियर? एक श्रिलनेस या शिवरिंगनेस आपका आएगा। वॉमिटिंग होगा, हेडेक्स होंगे। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इसके बाद देखिए एनीमिक, एनीमिक तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन हो रहा है, हेम कंपोनेंट, आयरन कंपोनेंट बॉडी के अंदर आपका घट जाता है, तो देयरफॉर एनीमिक हो जाते हैं बॉडी। डायरिया होगा, ठीक, आपके ब्लड लॉस या आपके जो वाटरी स्टूल्स होंगे इसके अंदर। क्लियर? मसल पेन होगा बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड कन्वल्जन्स विद ब्लडी स्टूल्स, ठीक, जो आपके डिफिकेशन होगा या फीकल मैटर होगा, वो बहुत ही ज्यादा खून में लिपटे हुए होंगे। क्लियर? नाउ व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट मलेरिया? ना इसके अंदर हम लोग ABCD, देयर आर ABCD रूल्स जो आपको याद रखना है टू प्रिवेंट मलेरिया। A फॉर अवेयरनेस ऑफ रिस्क। सबसे पहले आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में वास कर रहे हैं, उनके चारों तरफ आपको अच्छी तरह देखना है कि वहां पर मच्छर कितने ज्यादा है। अगर ज्यादा मच्छर है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ थ्रेट ऑफ मलेरिया। क्लियर? सो लुक अराउंड टू चेक इफ यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग मलेरिया, या कोई आसपास मलेरियल पेशेंट है कि नहीं, तो रिस्क ऑफ मलेरिया ज्यादा हो जाएगा। नाउ बाइट प्रिवेंशन कैसे करके मॉस्क्वीटो से आप बच सकते हैं ना? सबसे पहले आपको इंडोर या आउटडोर इंसेक्ट रेपेलेंट्स का मदद करना है। देखिए आजकल काफी सारे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकल गए हैं मार्केट के अंदर, सच एज सर्टेन काइंड ऑफ क्रीम्स एंड एवरीथिंग, जो आप बॉडी के ऊपर अप्लाई करके मच्छर को आप रोक सकते हो, रिपेल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, वेयरिंग कवर्ड क्लोथ्स ऑब्वियसली, और जब सोते हैं तो एक मच्छरदानी या मॉस्क्वीटो नेट का इस्तेमाल करना। क्लियर? चेक फॉर ब्रीडिंग एरियाज। क्लियर? हमें याद रखना है कि ये जो मच्छर है, ये सबसे ज्यादा आपका ब्रीड कहां पर करता है? स्टैंडिंग वाटर के ऊपर। तो कोई भी आपके आसपास घर के अगर जमा हुआ पानी है, तो उसको आपको हमेशा क्लीन करना है, और ऐसा देखना है कि कभी भी पानी कहीं पर कोई आपका टायर हो गया खाली, कोई आपका गमला हो गया, पॉट्स हो गया। नेक्स्ट, जो आपके घर के बाहर एयर कूलर होता है, उस एयर कूलर के अंदर पानी रहता है, तो उस पानी को जब जरूरत नहीं है तो उसको डिस्पोज कर देना, नया पानी रिफिल करना, ये सब चीज बार बार करना पड़ता है, तो तब जाके हम लोग उसके ब्रीडिंग एरियाज को क्लियर रख सकते हैं। क्लियर? और लास्ट, डायग्नोसिस। जैसे ही आपको कुछ भी मलेरियल सिम्टम्स नजर आए, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और मेडिकल हेल्प लीजिए। Clear? So these are the ABCD of the prevention mode of malaria. Clear? ठीक? अब हम लोग चलते हैं to the
फोर्थ, हमारा फिफ्थ हो गया था, अब सिक्स्थ काइंड ऑफ ह्यूमन डिजीज दैट इज एस्केरियासिस। नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग जब आपके एनिमल किंगडम पढ़े थे तो पढ़े थे अबाउट द एस्करिस। तो एस्करिस बिलोंग्स टू द राउंड वर्म। तो एस्करिस जो है, एस्करिस लुम्ब्रिकॉर्डिस, क्लियर, वो आपके करता है क्या चीज ना, जो एस्केलमेंथिस के अंदर आएगा, देखिए हेलमिंथिक डिजीज, क्लियर। सो दिस इज योर एस्करिस, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल है, वो फीमेल का जो लेंथ होगा वो बड़ा होगा देन द मेल। सो दिस इज द इंफेक्शन ऑफ एक्चुअली किसका, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्लियर। और ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इंफेक्शन किसकी वजह से होगा, द एडल्ट राउंड वर्म विच कम्स अंडर द फाइलम एस्केलमेंथिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, क्लियर। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस, क्लियर। स्पेलिंग का ध्यान रखना, काफी बार छोटे में भी पूछते हैं। नेक्स्ट, सो इट इज द लार्जेस्ट राउंड वर्म, ये याद रखिएगा आप कि राउंड वर्म लार्जेस्ट कौन सा है, एस्करिस। कितना लंबा होता है, लगभग 40 सेंटीमीटर आपका लेंथ इसका हो जाता है, क्लियर। दैट इज लार्जर देन आपका जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं उस रूलर या स्केल से भी ज्यादा होता है। वो स्केल होता है आपका 30 सेंटीमीटर का, ये 40 सेंटीमीटर होता है लगभग। मोस्ट इंडिविजुअल्स जिसके अंदर आपके ये वर्म तो है, बट अगर उसके अंदर वर्म काउंट कम होता है तो वर्म सिर्फ और सिर्फ ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस आपके अंदर रहने से ही आपको एस्केरियसिस होगा, ऐसा नहीं, क्लियर। तो एस्केरियसिस शो करने के लिए एक लार्ज वर्म काउंट होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए लो वर्म काउंट अगर होगा किसी के अंदर तो उनके अंदर ज्यादातर क्षेत्र में कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा, मतलब दे विल बी रिमेनिंग एसिम्प्टोमेटिक, क्लियर। हेवी इंफेक्शंस अगर किसी के अंदर होता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वर्म काउंट, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपके सिम्टम्स होंगे दे विल बी जैसे वॉमिटिंग, मैल न्यूट्रिशन, एंड इवन इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, क्लियर। तो जनरली आपका इसका जो लुम्ब्रिकॉडिस के जो एग्स है, क्लियर, आइदर इन ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक, तो इन ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर से इसके जो एग्स है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एंड दीज एग्स अगेन थ्रू द इनटेक ऑफ फूड, थ्रू द इनटेक ऑफ द डर्टी वाटर, क्लियर, तो ये ओरली ट्रांसमिट हो जाता है, इंजेस्ट हो जाता है इनटू द ह्यूमन बॉडी, क्लियर। एंड बिकॉज इसका मेन जो आपका जिसको ये अफेक्ट करता है दैट इज द इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके इसका जो जुवेनाइल वर्म स्टेज है वो धीरे धीरे करके पल्मोनरी माइग्रेशन, एलर्जी, गट ऑब्स्ट्रक्शन, मैल न्यूट्रिशन, ये सब करवाने में मदद करते हैं, क्लियर, ठीक है। और तब जाके वॉमिटिंग, मैल न्यूट्रिशन, ये बहुत सारा चीजें आपका शुरू होते हैं, क्लियर। तो दिस वाज योर एस्करिस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइलेरियासिस, क्लियर। सो फाइलेरियासिस भी आपका एक हेलमिंथिक डिजीज होगा जो पैदा करेगा कौन, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरेरिया मैलेई, क्लियर, जिसको हम लोग फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ एस्केलमेंथिक या राउंड वर्म, क्लियर। तो इसको हम लोग फाइलेरियसिस बोलेंगे, या अगर आपका ये बहुत ही सीवियर केसेस में आ जाते हैं तो इसको हम लोग एडिमा या एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका वेक्टर कौन है। हम लोग देखे थे कि व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन योर एस्केरिस, दैट वाज एस्केरियसिस होने के लिए अगर आपका ये फीकल मैटर से जो एग्स निकले वो अगर एग्स बाईपास होके आपके पानी में कॉन्टेमिनेट हो जाए, खाने में कॉन्टेमिनेट हो जाए, तो इजेशन के द्वारा वो आपका एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर। बट इसके क्षेत्र में भी आपके द फीमेल क्यूलेक्स एंड द फीमेल एनोफिलिस acts as the vectors for this parasite, क्लियर। बहुत ही ज्यादा आपका सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू द मलेरिया, ठीक है, बट वो आपके मलेरियल वर्म थे जो कि बहुत ही आपका माइक्रोस्कोपिक था बिकॉज इट वाज अ प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम, बट यहाँ पर ये आपके थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, क्लियर। सो द एडल्ट जो होंगे
ये जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या आपका मलाई का जो स्पीशीज है, इसके जो एडल्ट्स होंगे, ये धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल होते हुए कहां पर जाएगा, इनटू द टिश्यू फ्लूइड, दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स को जाके ये अफेक्ट करेगा, और लिम्फ वेसल्स के अंदर वो बहुत ही ज्यादा आपका एक जलन पैदा करेगा। क्लियर? इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है एक जलन पैदा करना। क्लियर है? ठीक। रिपीटेड इन्फेक्शन, अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उतना ज्यादा आपका डैमेज नहीं कर पाएगा, बट अगर बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन अगर होता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज करता है, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको रुकावट पैदा करता है, मतलब टिश्यू फ्लूइड का रुकावट पैदा करता है। क्लियर? सो इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक्स। और आपको पता है अच्छी तरह कि अगर लिम्फेटिक वेसल्स आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम, हम लोग बाद आगे जाके देखेंगे इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिम्फ के अंदर मेन काम है टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। क्लियर? ठीक। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर? सो रिपीटेड इन्फेक्शन के वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा, और कहीं ना कहीं रुकावट हो जाएगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। कभी कभी ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यही ऑब्स्ट्रक्शन विल लीड टू एडिमा। और ये एडिमा क्या बीमारी है ना, यहां पर जनरली आपके एक पार्ट, लोकल रीजन को आपका अफेक्ट करेगा, जैसे कि हो सकता है लेग्स, द आर्म्स, द जेनिटेलिया, द मेल एंड द फीमेल जेनिटेलिया। अगर आपके फीमेल्स है तो ब्रेस्ट को कर सकता है, और इस कंडीशन को ही हम लोग नाम देते हैं एलिफेंटियासिस। क्लियर? तो देखिए, दिस इज द अनअफेक्टेड लेग, बट ये जो लेग है, this is you're fully infected by the adult Wuchereria bancrofti or the Wuchereria malai, जिससे वजह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और एक हाथी पैर जैसा एबनॉर्मल मसल ग्रोथ यहां पर नजर आ जाता है। क्लियर है? ठीक। तो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइलेरियासिस। क्लियर? जो पैदा होता है फाइलेरियल वर्म, Wuchereria bancrofti and the Wuchereria malai। कोई दिक्कत? लास्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेवेंथ, ये आपका सिक्स नहीं, ये आपका सेवेंथ होगा, दैट इज अबाउट द फंगल डिजीज, या फंगल रैदर इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर दिखाई देता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द रिंग वर्म्स। क्लियर? ये रिंग डिजीज हम लोग रिंग वर्म भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज अ फंगल डिजीज। These are fungal diseases which are caused by many fungi। और ये कैसे फंगी है, कुछ नाम याद रखिएगा। जो पॉजिटिव रिंगवर्म में जो पॉजिटिव आपके फंगीज होंगे, कुछ आपके हो जाएंगे ऑफ द माइक्रोस्पोरम, जैसे कि ये देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन या एपिडर्मोफाइटॉन। क्लियर? दिस डर्म, डर्म का मतलब ही होता है स्किन, एपी मतलब इट एक्ट्स एज एन एक्सोपैरासाइट। क्लियर? तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये सारे के सारे आपके फंगस होगा, जो फंगस रिंगवर्म पैदा करेगा ऑन ह्यूमन बींग्स। रिंगवर्म जो है ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस इंफेक्शन है। क्यों कंटेजियस बोलेंगे? क्योंकि ये फैलता है बहुत जल्दी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन। कैसे फैलेगा देखेंगे। फैल के ये क्या करेगा, कैसे पता चलेगा कि वो रिंगवर्म है ना, जिस जगह पे आपका रिंगवर्म का इन्फेक्शन होगा वहां पर एक इन्फ्लेम्ड एरिया हो। क्लियर? एक रिंग के जैसा देखिएगा, एक थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा वो जगह, और एक इन्फ्लेमेशन जैसा लाल आपका सूजन टाइप नजर आएगा उस एरिया ऑफ इन्फेक्शन के अंदर। क्लियर? नाउ एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर ज्यादातर ये आपके होते हैं जो जिनके अंदर जो पसीना बहुत ज्यादा आता है जिनको, और ये ज्यादातर रेनी सीजन में होता है क्योंकि चारों तरफ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और उस मॉइस्चर और डार्क कंडीशन के अंदर, उस गर्माहट के अंदर ये फंगस बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। क्लियर? ठीक है। तो जनरली जो आपके क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो आपके एक मतलब ट्रांसमिशन ऑफ दिस फंगस भी हो सकता है। इसीलिए जो आप जिस एक आपका इन्फेक्टेड पर्सन जिसको रिंगवर्म है, उनके ना तो टॉवेल्स, ना ही कोई क्लोथ्स, इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी अ हाई रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ ringworms to a normal person because it is a highly contagious infection. कोई दिक्कत? क्लियर है? तो देखिए हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़े हैं, ठीक, हम लोग वायरल डिजीज पढ़ लिए थे, हम लोग प्रोटोजोअन डिजीजेस पढ़े थे, हेलमिंथिक डिजीज पढ़े थे, और फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द फंगल डिजीज. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपका ये सारे डिजीज तो था ही था, और थोड़ा डिटेल में भी जाके जो नीट के लिए आपके मतलब आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो टॉपिक भी मैंने आपका तैयार कर दिया है. तो ये सारा चीज था आज का जो हमारा लेक्चर था, वो अबाउट द कॉमन डिजीजेस इन द ह्यूमन बींग्स. ये टोटल आपका कंप्लीट हुआ. द 7 टाइप ऑफ डिजीजेस, दिस इज नॉट 6, दिस इज योर 7. सो 7 डिजीजेस हम लोग पढ़े हैं. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके इम्यूनिटी ग्रो करता है, या कैसे करके बीमारी या पैथोजन अंदर आता है, जो हम लोग डील करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर? टिल देन, थैंक यू.